Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we deal with the stack. So stack is the first in, last out data type. It's a linear data type. Means it's in one direction. I give you the notes, right? So they have something in it. You can see that. First in, last out. First in, that means like a bucket. If you put a first plate inside, the second plate inside, the third plate inside, who is going to go out first? The third. That is the last in, first out. You can say last in, first out, or the first in, which is the first in, that's the last out. So we can implement stack using either the arrays or the linked list. And stack is a very important data structure because it allows only from the top. If you have some kind of application where you want only those people to get out first who are on a last, then you can use the stack. So how we implement the stack is very simple. We have an array, whatever the size of array is. Okay, we have one pointer, that is top. Okay, this top is not a pointer here, it's just an index to the -1. Okay, because if it's -1, that means it's here. So if you increment -1, it becomes 0. That means it will come here where the data can be. If the top is at -1, that is outside the stack, that means stack is empty. So for that, we have some operations on the stack. We have what? Operations on stack. Now on, you should understand everything, okay? विस्तार में सारी चीजें आनी चाहिए. ऑपरेशन स्टैक में पहला क्या होगा कि हम पुश करेंगे. यू व्हाट द पुश ऑन अ स्टैक. इसमें सिर्फ इतना ख्याल रखना है कि कहीं मैक्सिमम साइज जो आपका है, जो भी आपने मैक्स साइज रखा होगा, ये बाहर तो नहीं जा गया, वो आ तो नहीं गया फुल. अब जगह नहीं है तो कहां भरोगे? तो उसके लिए मेरे पास एक ऑपरेशन होगा इज फुल. क्या होगा? जो ये चेक करेगा. सो मैं पुश तभी करूंगा इफ नॉट इज फुल. इफ जो इज फुल फंक्शन है वो रिटर्न करेगी 1. दैट मीन्स ट्रू फॉर दिस इफ कंडीशन. इफ दिस इवैल्यूएट टू 1, दैट मीन्स इज ट्रू. सो दैट मीन्स फुल है. तो मेरे को प्रिंट एफ करना है वहां पे क्या कि भाई साहब stack is full. That was what's called as an overflow in case of stack language. We say overflow. The stack is overflow, so I can't enter anything. If not is full, is 0. Is what? If is full gets 0, if is full gets, that means there is not. Okay, it's empty. There is some space inside. That means is full is not true. So what will is full return? It will return 1 if it is full, and it will return 0 when it is not full. So that's why I'm saying not is full. If is full is true, that means if it's full, what will is full return? Firstly, there is a is full function. It returns something, so I'm saying int. Okay, so I am saying if top, अगर top हो गया है किसके बराबर? यहाँ आ गया है max -1 के बराबर, है ना? So I will return 1. I will return what? Else I will return 0. है ना? तो अगर is full है तो what will return? 1. Not is full क्या बनाएगा उसको? 0. So that means कि ये condition false होगी. Okay? So I have to see कि मैं क्या return कर रहा हूँ. मैं 1 कर रहा हूँ return है, 0 कर रहा हूँ. उस हिसाब से मुझे यहाँ करना है. तो मुझे अगर if not is full का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे कहूँगा if is full, simple. If is not, if is full लगाऊंगा simply. So what will be is full if it is full? 1. Then I will printf issue full. Else I will printf what? I will ask no, I will not I will ask user to push something, push some values that I will put into the where? First index. But where is top? Because top is pointing to that. First index कौन सा index? उसको top करेगा point. उसको क्या करेगा point? लेकिन top अभी किधर है? So I have to put into the stack. array का नाम मानो stack है. इस array का नाम क्या है? Stack of plus top. First increment the top. First
सो टॉप यहाँ आएगा, अब डालो, सो प्री इंक्रीमेंट हो जाएगा ना, ठीक है। अभी अभी मेरे को क्या इधर डालने का, इधर डाल गया, इफ आई अगेन से पुश, इफ इट चक्स फर्स्ट फॉर इज फुल, ठीक है ना, फुल तो नहीं है, अगर फुल है तो प्रिंट ऑफ करेगा भाई फुल हो गया, अब नहीं भर सकते, वरना क्या करेगा, प्लस प्लस टॉप, पहले टॉप को प्लस प्लस करो, इधर लाओ टॉप को, अब भरो, ठीक है। तो पहली बार टॉप कहाँ होगा, एरे के बाहर, एरे के -1 पे, -1 इज द आउटसाइड। सो जब पहली बार आएगा आई विल से प्लस प्लस टॉप पे डालो एलिमेंट, और डलता गया जब यहाँ पे जो पहुंच गया टॉप, अब यहाँ पे है मैक्स -1 के ऊपर है ना, बिकॉज अगर मैक्स 10 है सो दिस विल बी 0 आफ्टर 9, मैक्स -1 पे आ गया है, अब नहीं करने का। सो उस सूरत में ये कंडीशन जो है इज फुल ट्रू हो जाएगी, तो ये एल्स पार्ट में पुश नहीं करेगा, बल्कि ये प्रिंट करेगा कि ओवरफ्लो हो गया। इजंट इट सिंपल, ठीक है। इसी तरह से पॉप करना है, क्या करना है, द पॉप ऑपरेशन विल do two things. It's a destructive read. It's what? Destructive read in the sense it not only reads the top element but also deletes that. We literally don't delete it, we decrement the top. Because if you have to access the stack, you have a top only to access it. से फर्ज कीजिए आपके पास ये एलिमेंट्स हैं और टॉप यहाँ पर है, वहां पे 5 है। अब पहला कौन रिमूव होना, अगर रिमूव करना है तो कौन रिमूव होगा, 5, बिकॉज लास्ट इन फर्स्ट आउट है ना, और फर्स्ट इन लास्ट आउट, जो फर्स्ट इन है सबसे एंड पे होगा, क्योंकि इसके पास एक्सेस नहीं है, इसको हमारे पास टॉप एक्सेस है ना, सो वी विल रिमूव द टॉप, वी विल रीड द टॉप, दैट इज 5, वी प्रिंट इट एंड वी डेक्रीमेंट द टॉप हियर। सो आई ऑलवेज से टॉप माइनस माइनस फॉर द पॉप, बट एक वक्त ऐसा भी आ सकता है ना कि आपने ये भी पढ़ा है, भी पढ़ा है, भी पढ़ा है, भी पढ़ा, कुछ नहीं है, सो दैट इज एम्प्टी, मेरे पास एक होगी मेथड, क्या होगी, तो ये देखेगी कि कहीं एम्प्टी तो नहीं है, ये खाली तो नहीं है, -1 पे तो पहुंच गया, अगर -1 पहुंच गया तो फिर तो कुछ है नहीं, अगर टॉप -1 पे है ना, तो जनाब ये तो एम्प्टी है। फर्ज कीजिए आपने पहले ही किया इज एम्प्टी, यार ये मतलब पॉप करने की कोशिश की पहले ही, तो वहां तो कुछ है ही नहीं, या आपने पॉप 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 किया है, अब कुछ नहीं है वहां, तो उस सूरत में इज एम्प्टी ट्रू आएगा। सो हम पॉप करने से पहले इज एम्प्टी देखेंगे, अगर वो ट्रू है तो मैं कहूंगा भाई साहब अंडरफ्लो है, क्या है, वरना मैं जो टॉप माइनस माइनस पोस्ट इंक्रीमेंट स्टैक ऑफ टॉप, जो स्टैक ऑफ टॉप है उसको मैं प्रिंट करूंगा, ये प्रिंट एफ में आ जाएगा %d वगैरह, डबल क्लोज कामा, स्टैक ऑफ टॉप, मगर पोस्ट डेक्रीमेंट, यानी कि पहले वो चीज पढ़ो और टॉप क्या करो, अब टॉप यहाँ पे है, अब अगर मेरे को यहाँ पे पॉप करना है, पहले टॉप को पढ़ो, टॉप स्टैक ऑफ टॉप को पढ़ो, वो प्रिंट करो, और पोस्ट डेक्रीमेंट करेगा बाद में उसको डेक्रीमेंट, यानी कि अब टॉप कहाँ पर है, यहाँ पे, हालांकि ये दो एलिमेंट उधर ही है लेकिन इनको एक्सेस नहीं है क्योंकि हम टॉप तक करते हैं काम, वर्क अप टू, ओके। एक तो मेजर ऑपरेशन हमारा पुश है, सेकंड हमारे पास है पॉप, क्या है, एक तो पुश ऑपरेशन है, एक तो पॉप ऑपरेशन है, तीसरा ऑपरेशन मेरे पास है पीक, और चौथे जो है हमारे पास इज एम्प्टी और इज फुल, और छठा मेरे पास है ट्रवर्स। बस अगर मैं चाहता हूं कि मैं सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करूं विदाउट डिलीटिंग, हाँ क्या बोल रहे थे आप, 4 पे ही तो पहुंचेगा, उसके बाद पहुंचेगा ना 3 पे, उसके बाद पहुंचेगा 2 पे, यानी कि पहले ये टॉप पड़ेगा उसके बाद डिक्रीमेंट करेगा। अगर हम पहले ही माइनस 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 टॉप करते तो पहले ये डिक्रीमेंट करता ना, अगर मैं स्टैक ऑफ माइनस माइनस टॉप करता, यानी कि अगर टॉप यहाँ पर है, फर्ज कीजिए टॉप यहाँ पर है, वहां पे 4 है, तो अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा, ये चीज को मैं प्रिंट करूंगा, ठीक है, तो अगर मैं पहले ही माइनस माइनस टॉप पहले ही माइनस करेगा, ये टॉप को इधर लेगा फिर 3 को प्रिंट करेगा, 4 को प्रिंट, वो गलत हो जाएगा, पहले मुझे टॉप को प्रिंट करना चाहिए फिर जाके डिक्रीमेंट करना चाहिए नेक्स्ट ऑपरेशन के, अब टॉप ये है यानी कि ये डिलीट हो गया, ठीक है, हालांकि उधर ही है वो एलिमेंट, हमने डिलीट नहीं किया बल्कि टॉप को हमने डिक्रीमेंट किया, अब इसकी कोई एक्सेस नहीं है। और जो हम पीक करते हैं, क्या करते हैं, जो पॉप मैंने कहा वो डिस्ट्रक्टिव रीड है,
वो लास्ट एलिमेंट जो मेरा है, अगर यहाँ पे 5 है, इसको रीड भी करेगा और डिलीट भी करेगा, फिर गेट आउट ऑफ दिस, यानी कि हमारे स्टैक पे रहेगा अब 2 4 3 2। लेकिन जो मेरा पीक है वो सिर्फ देखेगा कि मेरे टॉप पे क्या है। जैसे यहाँ पे 5 है, इसको रीड करेगा इस 5 को, लेकिन इसको डिलीट नहीं करेगा। और ट्रवर्स क्या करेगा, 0 से लेके टॉप तक, 0 से लेके इन सबको रीड करेगा। डज मेक सेंस? तो पीक उधर डिस्प्ले एक साथ है ना? पीक डिस्प्ले नहीं है, पीक में सिर्फ टॉप को डिस्प्ले Top करते हैं। display. ट्रवर्स इज डिस्प्ले, ट्रवर्स में हम सारा देखते हैं। द सेम प्रोग्राम आई हैव गिवन इन द नोट्स इज हियर। ओके, सो पहला काम हमारे पास होगा स्टैक ऑफ स्टैक मैक्स। स्टैक मैक्स मैंने कितना रखा, 10। Yeah. अब स्टैक मैक्स मेरे पास एरे है, टॉप कहाँ पे है, -1. तो इनिशियली मेरे पास टॉप जो है वो एरे के बाहर है, यानी कि यहाँ पर है ना, -1 पे। उसके बाद हमें पुश करना है, तो एलिमेंट्स हम डाल सकते हैं। अगर पॉप करेंगे तो एलिमेंट हम निकालेंगे। पीक से क्या दिखेंगे, टॉप वाला Top एलिमेंट, one. है ना। हम्म. इससे पहले हम पुश करें, हमें इज फुल देखना पड़ेगा, कहीं ये एरे टॉप फुल तो नहीं होगी। फिर टॉप, फिर पुश क्या करोगे, फिर पुश नहीं कर सकते। पॉप करने से पहले मुझे देखना कहीं खाली तो नहीं है, इज एम्प्टी। सो ये मेरा इज एम्प्टी वाला फंक्शन है, ये इज फुल वाला फंक्शन है, ये पॉप पुश, ये ट्रावर्स वाला और ये पीक वाला, इनके प्रोटोटाइप्स हैं। दीज आर, तो पता ही है हमको, ठीक है ना, बात में आ रही है। जी सर. सो पहले हम क्या करेंगे काम, हम यूजर को बोलेंगे कि भाई तू करना क्या चाह रहा है। ये मेन मेरा आ गया, यहाँ पे चॉइस है और स्टैक आइटम। स्टैक आइटम मीन्स वेरिएबल्स में मैं डालूंगा, ठीक है। अगर मुझे जरूरत है यहाँ पे स्टैक आइटम, वैसे मुझे यहाँ पे जरूरत ही नहीं है स्टैक आइटम, मैं वो उधर ही कर रहा हूँ ना। आई डोंट नीड दिस स्टैक आइटम एट ऑल, यू कैन डिलीट दिस। ओके, while one means always true, one means true, one means what, so it will never end, it will stay in a while loop forever, unless you don't do something inside the loop to get out of, that is break. You can go out of the loop using break, otherwise it will stay in this while loop forever. This is infinite loop. If you do something while one, say while one printf hello, it will print hello for infinite time, it will never stop, because while one is always true, it comes back to while is true, go, come back, it's always true. One means true, one means what, anything other than one means false. I mean 0 means false, anything other than 0 means true in C. Okay, so typically we say 1 and 0, otherwise if anything there comes 2 3 without anything, it's true. 0 means false only in C, because we don't have a boolean here, the bool did type. Instructions to the user, stack operation, press 1 for push, 2 for pop, peek, traverse, and quit. In quit, you just break out of it. That's simple. I'm giving it, it's a choice, but you want to quit or not. And I got the choice and put it into what? Choice. And I give that choice to the switch. If it is case 1, then I should do what? I will call the push. If it is 2, I will call the, I'm keeping it very clean. This case, there is nothing like that. If 1 push, whatever you have to do, that is in a push function. 2 pop, 3 peek, 4 traverse, and in a 5 do nothing, just return and break. Return and break. Okay, that's it. Otherwise, what I do here is called system pause. System pause is like you are doing C, that turbo C, that's a getcha. You have to getcha stop to pause the screen. Okay, before it goes up, because when it goes up, it clears the previous screen. Because I have done here system CLS, it will clear the screen. So whatever is the previous output, that is gone. जो पुश में मुझे आता ना, जैसे मैंने पुश किया तो वहां पे ऑपरेशन आता कि भाई साहब ये तो फुल है, सो कैसे ना क्लियर इट पथ, ये वापस आके यहाँ पे क्लियर करेगा, वो दिखेगा नहीं। इसलिए कि इससे पहले कि वापस दोबारा जाए इन ऑपरेशंस के ऊपर वापस आके ना, कैसे ना स्विच खत्म, उसके बाद यहाँ पे पास मारेगा। क्या मारेगा, हमें वो आउटपुट दिखेगा, ताकि वो दिखेगा वो ना, वो जो पुश ने किया था। फॉर एग्जाम्पल अगर यूजर ने पुश किया 1, अगर प्लस किया यहाँ पे 1, सो व्हाट विल हैपन, पुश ऑफ, दैट मींस वी आर पुश, दिस इज माय पुश। जरूरत ही नहीं पड़ता था।
तो खुद ही रुकता था ना, वो डिस्प्ले देता था। इसमें जो पुश ऑपरेशन में जाएंगे हम, वो अगर ये उसने मैसेज दी ये वाली, दिखेगी नहीं, क्योंकि किसना क्लियर हो स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पे पास करना पड़ेगा ताकि ये दिखे मुझे। ठीक है, ओके, सिस्टम पास मैं कर रहा हूँ। अब पुश ऑपरेशन में क्या करेंगे हम, पहले मैं एक स्टैक एलिमेंट ले रहा हूँ वेरिएबल। पहला चीज मैं देखूंगा इफ इज, कहीं फुल तो नहीं। व्हाट इज फुल डूइंग, व्हाट विल बी इज फुल डूइंग, इट विल चेक whether the top has gone where, maximum. Don't sleep, you're sleeping. That is, this is full. It will return int if top is equal stack max minus 1. अगर stack max minus 1 है ना, तो क्योंकि stack max अगर 10 है, हमारी array है 0 to 9, यानी कि अगर टॉप पहुंचा है 9 पे, अगर 10 था, 10 minus 1 is 9, तो मैं रिटर्न क्या करूंगा, that means it is full. else, इसलिए इस सूरत में मैं नॉट फुल वहां चेक नहीं करूंगा, मैं फुल चेक करूंगा। इफ इज फुल, यहाँ पे इफ इज अगर फुल नहीं है, अगर नॉट फुल करता तो फिर एल्स वाला पार्ट इसमें करना था और इसमें उल्टा करना। बस इफ इज फुल का मतलब क्या है, फुल है, वो कैसे पता चलेगा, इसने कॉल मारी इसको इज फुल को, उसने देखा कहीं टॉप मत पहुंच गया स्टैक मैक्स माइनस 1, अगर पहुंचा है तो रिटर्न क्या होगा, दैट्स व्हाई इट्स एन इंट, रिटर्न टाइप इज व्हाट, इंट, इट्स नॉट वाइड। अगर आप पॉप देखोगे, पुश देखोगे, उसका वाइड है, बिकॉज वी नॉट रिटर्निंग एनीथिंग। हियर वी आर रिटर्निंग दिस 1 और 0। अगर फुल नहीं है तो रिटर्न क्या हो जाएगा, सो इट विल रिटर्न 0। सो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 0 मीन्स व्हाट, फॉल्स। सो इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, एल्स चलेगा। अगर इज फुल है, दैट मीन्स स्टैक मैक्स माइनस 1 पे टॉप पहुंच गया है, वहां पहुंचा है जहां टॉप लास्ट एलिमेंट पे, तो रिटर्न क्या आ जाएगा, 1 मीन्स ट्रू। सो इफ इज ट्रू मीन्स इफ ट्रू, अगर ट्रू है तो ये चलेगा, एल्स चलेगा क्या, नहीं चलेगा, सिंपल है ना। तो इसलिए जब यहाँ पे 1 आ जाएगा तो इफ चलेगा, अगर 0 आएगा तो उसका मतलब है कि अभी स्टैक में जगह, तो एल्स चलेगा। एल्स में क्या करेंगे हम पहले यूजर को बोलेंगे चलो दे दो एलिमेंट जो भरना है, जो पुश करना है। उसने एलिमेंट दे दिया, वो मैंने स्टैक एलिमेंट में पकड़ा, इसलिए मैंने स्टैक एलिमेंट यहाँ पे वेरिएबल रखा, वो इस स्टैक एलिमेंट में मैंने पकड़ा। ठीक है, अब कहाँ डालेंगे वो, पहले टॉप को प्लस करेंगे, पहले इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि टॉप किधर है, वो -1 के पास है ना। अगर मेरे पास ये एरे है तो टॉप यहाँ पे है ना, तो पहले टॉप को इधर लाओ। ठीक है, तो उसके बाद एलिमेंट डालो। अगर टॉप अब यहाँ पर है और मुझे यहाँ एलिमेंट डालना है, तो पहले टॉप को इंक्रीमेंट करो, उसके बाद डालो। तो इसलिए प्लस प्लस प्री इंक्रीमेंट हो जाएगा टॉप को, स्टैक ऑफ, और प्री इंक्रीमेंट टॉप को हो जाएगा, टॉप यहाँ पे आएगा पहली बार। अब स्टैक ऑफ टॉप में डालो ये स्टैक एलिमेंट जो अपने यूजर से पकड़ा। ठीक है, अब जो स्टैक में फॉर एग्जाम्पल 22 डाला, वो 22 यहाँ डालेगा, और हम मैसेज भी देंगे %d हैज बीन पुश्ड, कि भाई साहब हमने ये एलिमेंट को पुश किया है। यहाँ पे हम एक और \n करेंगे, ताकि एक \n तो है ही, एक यहाँ से भी करेंगे। ठीक है, \n \t, थोड़ी स्पेस भी देंगे। तो मैं कहूंगा % एलिमेंट, यानी कि जो एलिमेंट आपने भरा, जो वो किसके पास है, वो एलिमेंट जो भरा आपने, तो स्टैक एलिमेंट हैज, वो अगर 22 फॉर एग्जाम्पल था, 22 हैज बीन पुश्ड, मैसेज आ जाएगा पुश्ड सक्सेसफुली कहेंगे। ठीक है, राइट। तो जब ये वापस आएगा पुश ऑपरेशन करके, या तो उसने एलिमेंट को पुश किया होगा, या तो एलिमेंट एरे फुल होगी, तो वो कहेगा भाई साहब स्टैक इज फुल, वी कांट, दिस इज ओवरफ्लो। ठीक है, तो यहाँ \n करें, यहाँ पे n नहीं है, \n। ठीक है, उसके बाद जो है ये वापस आएगा कहाँ पे, इस पुश ऑपरेशन के पास, क्योंकि यहाँ पे आएगा ना, क्योंकि पुश किया था ना। अब वहां से क्या मारे गए, ब्रेक विल गेट इट आउट ऑफ स्विच, जो स्विच केस है इसके एंड पे आ जाएगा, है ना। और वाइल यहाँ तक है, ये वाइल एंड यहाँ पे पास मारेगा वो, ताकि वो इन्फॉर्मेशन में मिले। फिर जब यूजर एंटर करेगा तो वाइल इसको वापस कहाँ ले जाएगा, इट विल गेट इट बैक टू द वाइल स्विच 1 के, जो वाइल 1 था, है ना, जो हमारा वाइल 1 यहाँ पे था, यहाँ पे लाएगा वापस, वहां क्लियर स्क्रीन करेगा, फिर से इंफॉर्मेशन आएगी क्या करना चाहते हो। फर्ज कीजिए अब इस तरह से आपने पुश किए 5 एलिमेंट्स 1 1 करके, अब पॉप करना चाह रहे हो। आप क्या करना चाह रहे हो, पॉप में क्या होगा, जो टॉप एलिमेंट होगा वो डिलीट, कैसे डिलीट होगा, हम टॉप को माइनस करेंगे,
पहले वो रीड करेंगे, उसके बाद टॉप को क्या करेंगे, माइनस में, लेकिन पहले रीड होगा, पहले ही डिक्रीमेंट नहीं होगा। तो इसलिए मैं पुश पॉप पॉप, अगर इसने आपने 2 कहा है यहाँ पे, फर्ज कीजिए आपने 2 के कहा, ये चॉइस में गया, उसके बाद ये किस में गया, स्विच चॉइस, और 2 पॉप करेगा, तो इट विल जंप टू द पॉप फंक्शन, जंप टू, दैट इज समवेयर डाउन हियर। पॉप में मुझे किसका ख्याल रखना है, कहीं एम्प्टी तो नहीं है ना? कब होगा एम्प्टी, आप बताओ मुझे, आप बताओ मुझे कब होगा एम्प्टी, जब टॉप -1। उसके लिए मेरी एक फंक्शन है इज एम्प्टी। कौन सी फंक्शन है? is empty will return 1 if it is empty and returns 0. So you tell me the code of is empty. Is equal to क्या बार बकवास कर रहा है? is empty की तो बात कर रहा हूं मैं, फंक्शन की। is empty फंक्शन कैसी होगी, रिटर्न क्या करेगी ये is empty फंक्शन, रिटर्न क्या करेगी, int is empty फंक्शन होगी, ठीक है? वो if क्या होगा, if टॉप इज इक्वल टू, अगर टॉप -1 है तो रिटर्न क्या होगा, तो रिटर्न 1, रिटर्न, वरना क्या होगा, रिटर्न 0। तो अगर टॉप -1 है दैट मींस टॉप इज हियर, फिर तो कुछ नहीं उधर, या तो आप पहले ही आए हो यहाँ पे जब आपने एलिमेंट अभी भरे नहीं थे, या आपने पुश किए थे फिर पॉप किए थे, और पॉप करते 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 आपके सारे गुना धुल गए, आपको कुछ है नहीं, तो पॉप क्या करोगे, ठीक है, बस में आई। सो हमारी इज एम्प्टी ये फंक्शन हो। सो इसीलिए मैं पहले कॉल मारूं, किसको मारूंगा कॉल, यहाँ पे इज एम्प्टी को, कहीं खाली तो नहीं है। अगर एम्प्टी होगा तो यहाँ पे रिटर्न कर क्या आएगा, 1। व्हाट डू 1 मींस ट्रू, इफ ट्रू देन से भाई अंडरफ्लो हो गया, फिर तो नहीं करना आपको पुश पॉप, उधर है ही नहीं तो करोगे क्या, वरना अगर 0 आ गया मतलब उसके मतलब ये है कि टॉप -1 पे, टॉप अगर -1 पे नहीं हो मतलब क्या है कि वो कहीं पर है, कुछ है उधर, चाहे एक एलिमेंट है, 2 है, जितने भी है। अब कौन सा एलिमेंट मुझे पॉप करना है, जो लास्ट वाला, द टॉप वाला। सो वो किसको पता है, टॉप को, है ना? तो ये तो टॉप को ही पता है ना, जैसे टॉप पहले -1 पे था, जब आपने एलिमेंट टॉप को प्लस प्लस के यहाँ एलिमेंट डाला आपने 2 फॉर एग्जाम्पल, फिर टॉप यहाँ पे था, अब टॉप को प्लस प्लस करके एलिमेंट यहाँ डाला, टॉप यहाँ पर है, तो टॉप उधर ही है जहाँ एलिमेंट है। अगर डालना है इधर, पहले टॉप को इंक्रीमेंट करो, वो पुश करेगा ना पहले इंक्रीमेंट, उसके बाद डालो। अब टॉप यहाँ पर है, ठीक है? तो अगर टॉप -1 पे नहीं है तो कुछ ना कुछ वहां है, कोई ना कोई एलिमेंट। तो मुझे क्या करना चाहिए, वो टॉप जहां पर है वो एलिमेंट प्रिंट करना चाहिए, और टॉप को उसके बाद माइनस करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई डू हियर। अगर एल्स कब आएगा यहाँ पे, एम्प्टी कब नहीं होगा, जब -1 नहीं होगा, जब टॉप -1, जब टॉप -1 से इधर होगा, जब टॉप -1 से इधर है मतलब है कि स्टैक भाई साहब कुछ एलिमेंट है। तो पॉप कर क्या करेंगे, पहले हम स्टैक ऑफ, यहाँ जो हम कर रहे हैं हम स्टैक ऑफ टॉप जो होगा पहले, ये पहले इसमें जाएगा, ठीक है, बिकॉज दिस इज पोस्ट डेक्रीमेंट। फर्स्ट स्टैक ऑफ टॉप जो है वो स्टैक आइटम में जाएगा, उसके बाद टॉप माइनस माइनस हो, है ना? इट इज लाइक दिस टू ऑपरेशन इज लाइक दिस, जो स्टैक आइटम है क्या है, उसमें डालो स्टैक ऑफ टॉप, उसमें क्या डालो, उसके बाद करो टॉप माइनस माइनस। इट इज लाइक दिस एक्चुअली, पहले ये डालो इसमें, यानी कि टॉप में क्या है 4, ये 4 उठ के कहाँ चला जाएगा, स्टैक आइटम में, ओके? अब टॉप कहाँ से है, अब टॉप यहाँ पर है, अब टॉप 3 पे है, तो फिर आप प्रिंट करोगे वो कि लास्ट पॉप्ड आइटम इज इक्वल %d, स्टैक आइटम में 4 है ना, वो 4 प्रिंट हो जाएगा, तो भाई मैंने ये प्रिंट किया, ठीक है, लास्ट पॉप्ड आइटम इज इक्वल %d, % का स्टैक आइटम, और टॉप है एग्जैक्टली जहां पे, कहा क्या है, हाँ, फिर से पॉप करोगे तो 3 डलेगा स्टैक आइटम में, वो स्टैक आइटम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, और टॉप को लेकिन क्या हो जाएगा, पोस्ट डेक्रीमेंट, दैट मींस माइनस माइनस, अब टॉप 2 पे, ठीक है? फिर से पॉप करोगे आप, क्योंकि टॉप -1 नहीं है तो इज एम्प्टी फॉल्स आ जाएगा, 0 आ जाएगा, रिटर्न करेगा 0, और उसका मतलब है कि एल्स जाएगा, 2 जाएगा स्टैक आइटम में, 2 प्रिंट होगा, और टॉप क्या होगा, सो टॉप यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? अगर इसके बाद फिर से आप पॉप करोगे, अब इज एम्प्टी जो है वो ट्रू आएगा, क्योंकि इज एम्प्टी का कोड फिर से तो बता क्या होगा, इज एम्प्टी का कोड पहले क्या, इज एम्प्टी क्या लिखेंगे, व्हाट विल रिटर्न टाइप का पूरा लिख, रिटर्न टाइप क्या होगा इसका, इज एम्प्टी का
मैं अंदर का कोड नहीं बता, पहले फंक्शन लिखना ऊपर वाली डेफिनेशन, उसके लेफ्ट में क्या लिखोगे, क्या बोल रहा है, रिटर्न टाइप क्या होगा इज एम्प्टी का। जैसे ये पॉप है, क्या वन बोल रहा है, से फंक्शन पॉप है, इसमें रिटर्न टाइप क्या है वाइड, क्योंकि रिटर्न कुछ नहीं कर रहा। तो इस तरह रिटर्न टाइप क्या होगा हमारा, अगर वो ऐड नहीं होगा तो फिर कैसे यहाँ पे 1 या 0 ला रहा है, इसमें यहाँ पे इज एम्प्टी ला रहा है ना, ये 1 या 0, इज एम्प्टी तो रिटर्न कर रहा है, या तो 0 या तो 1 कर रहा है ना। रिटर्न टाइप क्या होगा, इंट होगा, यहाँ पे इंट होगा, अभी तो लिखा भी मैंने, संगीत खबर का इंट इज एम्प्टी, ऐसे होगी ना, इंट इज एम्प्टी, ठीक है। क्या क्या लिखेंगे अब यहाँ पे, इफ, शाबाश, वेरी गुड, इफ टॉप इज इक्वल टू, अगर -1 तो रिटर्न क्या होगा, रिटर्न करेंगे 1, वापस रिटर्न क्या करेंगे, चूंकि हम रिटर्न कर रहे हैं ना कुछ, इसलिए यहाँ पे क्या होगा इंट। इस तरह मेन में हम रिटर्न करते हैं तो उसको क्या लिखते हैं, इंट मेन। पॉप या कोई बात नहीं, घबराओ मत, कोई मसला नहीं, जो पॉप या पुश थी, पॉप या उसमें कुछ रिटर्न नहीं हो रहा, तो उसका रिटर्न टाइप क्या है यहाँ पे वाइड, जिसमें हम रिटर्न करेंगे तो उसमें जो रिटर्न करेंगे उसका डेटा टाइप लिखना है। अगर फर्ज कीजिए हम रिटर्न कर रहे हैं कैरेक्टर्स ABC, तो रिटर्न टाइप क्या होगा कैर। अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट कर रहे हैं रिटर्न तो फ्लोट होगा। तो यहाँ पे 0 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न टाइप। तो जो भी फंक्शन होती है उसका पहले हम लिखते हैं रिटर्न टाइप की, टाइप क्या है रिटर्न का, अगर कुछ नहीं करते तो वाइड, वरना अगर इंट कर रहे हैं तो इंट, क्या वो भी दिखाई देता हूँ मैं फंक्शन, कोई मसला ही नहीं है यहाँ पे। ये रहा इज एम्प्टी हमारा, नहीं ट्रावर्स है, इज एम्प्टी कहाँ पर है, पॉप, ये रहा इज एम्प्टी। रिटर्न टाइप क्या है इसका, इंट इफ टॉप इज इक्वल टू -1, अगर -1 है तो रिटर्न क्या करो, वरना, और ये 1 और 0 किस में घुसेगा, ये उस इफ में घुसेगा, ये इस पॉप कहां पर है, पॉप फंक्शन जो ये इस इफ में घुसेगा, है ना। तो 0 मीन्स फॉल्स, 1 मीन्स ट्रू। तो अगर इज एम्प्टी ट्रू है तो भाई अंडरफ्लो, वरना क्या करो, स्टैक पहले देखो स्टैक ऑफ टॉप जो है वो डालो स्टैक आइटम में, बाद में टॉप माइनस हो जाएगा और उसको प्रिंट करो, पॉप हो गया, खेल खत्म, ठीक है जी, सिंपल एज इट इज। तो पीक क्या करेगा, पीक मैंने क्या बोला, इट इज नॉन डिस्ट्रक्ट। तो देखो मत इधर, इसको नीचे करूंगा, अब बता पीक कैसे क्या करेंगे, मैं फिर से बताता हूँ, फिर से बता रहा हूँ, बट यू विल टेल मी द कोड, ओके। घबराओ नहीं आप, अगर गलत भी होगा कोई मसला नहीं है, डोंट वरी, कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि इसे पूछने से जो होता है ना, इससे दिमाग खुल जाता है, जब इंसान पूछता है ना उससे दिमाग खुल जाता है। देखो अब इसमें एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5, अब टॉप कहां पर है 5 पे, ऑब्वियसली वो 5 पे होगा जहां पे एलिमेंट है ना। अगर पी करना है ना तो 5 प्रिंट करना है बस, और कुछ नहीं। तो 5 किसको पता है, तो स्टैक ऑफ टॉप को प्रिंट करना है। क्या टॉप को प्लस प्लस या माइनस माइनस करना है, नो, डोंट डू दैट। सो प्लस प्लस माइनस माइनस करके आप वो पुश पॉप का मसला करोगे, ठीक है ना, हमें खाली एलिमेंट को प्रिंट करना है। सो व्हाट विल बी द पीक, कोड फॉर द पीक, प्रिंट करेंगे स्टैक ऑफ टॉप, और क्या होगा, तो ये रहा हमारा पीक। पहले मगर देखेंगे कि खाली तो नहीं है, हम पीक कर रहे हैं टॉप -1 के पास है, तो वो कौन दिखेगा कि टॉप -1 पर कहां से, इज एम्प्टी दिखेगा। फिर से कोड बता इज एम्प्टी का, पहले रिटर्न टाइप क्या होगा उसका इज एम्प्टी का, मौसे चू वो बाकी बताएगी, रिटर्न टाइप है इज एम्प्टी का क्या होगा, इंट, वेरी गुड, इंट इज एम्प्टी होगा। उसके बाद अंदर क्या होगा कोड, इफ टॉप, बच्चों का चू, सो पीक भी वही दिखेगा, कहीं खाली तो नहीं है। खाली का मतलब क्या है कि टॉप कितने हैं पाजी, -1 पे, अगर -1 पे है तो भाई कुछ खा नहीं सकते, हमने कोई गुनाह नहीं किया, तो स्टैक इज एम्प्टी। वरना की करोगे भाई, एलिमेंट एट टॉप इज परसेंटेज डी स्टैक ऑफ टॉप, स्टैक ऑफ टॉप को प्रिंट करो, सिंपल, टॉप को कुछ मत करो, छेड़ो मत, सिंपल है। तो कोई पीक है, कोई ऑपरेशन है क्या। तो ट्रावर्स क्या होगा, मेरे तो देखो 0 से लेके कहां तक, तो आपके अरे 100 की भी हो सकती है, 200 की भी हो सकती है, लेकिन टॉप को पता है कि लास्ट एलिमेंट किधर है और 0 है,
लेकिन उसमें भी एक चीज है कि कहीं अरे खाली तो नहीं है, वो कौन बताएगा? अब मुझे बार बार करने की जरूरत नहीं है इस एम्प्टी से ये -1 लिखने की, उसके लिए मैंने फंक्शन बनाई हुई है, कौन सी? इसलिए मैंने फंक्शन बनाई इस एम्प्टी, तो बार बार करना पड़ता, इफ टॉप इज इक्वल टू -1 तो लिखना पड़ता, तो कोड लेंथी हो जाता। तो हमने अब पहले ही फंक्शन बना रखी है कि भाई साहब अगर टॉप -1 पे है तो एम्प्टी है, तो कुछ नहीं है, वरना 0 से लेके कहां तक? तो फॉर लूप चलाओ, फॉर i इज इक्वल 0, i इज लेस देन इक्वल टू टॉप, इक्वल टू, क्योंकि टॉप जहां है वो एलिमेंट है, i प्लस प्लस प्रिंटफ परसेंटेज डी बिंगो, int i printf stack element r for i is equal to 0। अगर is empty है तो पाजी खाली, वरना i वेरिएबल डिक्लेयर करो। ये मगर प्रॉब्लम नहीं, कहने प्रॉब्लम क्या ऐसी कंडीशन स्टेटमेंट, क्योंकि int मैंने लगाया ना एल्स में, तो ये पहली स्टेटमेंट हो जाएगी, क्योंकि ये चलेगा ही नहीं, क्योंकि वेरिएबल हैज टू बी द फर्स्ट लाइन, क्योंकि ये चलेगा ही नहीं ना अगर एम्प्टी नहीं है, तो ये पहली लाइन है टेक्निकली, आई हमारा पहली लाइन है, तो वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं वहां पे। इस फंक्शन की फंक्शन भी है ना, ये एल्स का ये ब्लॉक, तो ब्लॉक में हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम ऊपर वेरिएबल्स कर रहे हैं, अगर मैं कहीं पे ब्लॉक डालूंगा, कहीं पर भी मैं ब्लॉक डालूंगा ऐसे, मैंने डाला इसमें, तो इसमें वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, तो उसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये जो आई है इसका स्कोप सिर्फ इसके ऊपर, इस चद्दर के अंदर, ठीक है, ये इसी चद्दर में, कान्यू शाल उड़ो में। नाउ यू ट्रैवर्स, simple as it is, समझ आवा? If you understood this whole story, you have the code also, then you have to do this program, wherein what we do is, what you have to do is you have to convert a decimal number and convert it into binary. This will be the application of the stack also. यहाँ देखिए आप, मैं आपको समझा रहा हूँ ना इसका ये कॉन्सेप्ट क्या है, पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर आप पुश पॉप क्या करोगे वो करोगे आप, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेरे पास एक डेसिमल नंबर क्या है, मुझे इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करूंगा? टेक्निकली स्पीकिंग हम डिवाइड पे 2 करते हैं, दैट इज 2 का 2, 2 2 ने 4, सो यहाँ पे 0। So what I have done, what will be the answer here is 0, right? I have tried 0 and so on, अभी और भी बाकी है, लेकिन मैंने किया क्या इसको, मैंने 24 को डिवाइडेड बाई 2 किया, मैंने 24 को, ये पहला स्टेप है, इसमें 2 स्टेप लगेंगे, स्टेप 1 एंड स्टेप 2, स्टेप 1 एंड स्टेप, इसमें 2 स्टेप्स है मेरे पास, जो मैं कोड में इस्तेमाल करूंगा। स्टेप 1 में जो मेरा नंबर है उसको मैंने डिवाइड किया, 2 into 12 is 24, what is remainder? That thing is I'm interested in, that should go into the stack, this 0 should go into what? ये stack मेरा है, this 0 will go into the stack, ठीक है, या नीचे, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट टाइम जो नंबर होगा वो आप 24 नहीं होगा, आप कौन होगा? द कोफिशिएंट शुड बी द नेक्स्ट नंबर। तो जो नम में मेरा था क्या, अगर नम मेरा था वो 24 था, अब नेक्स्ट टाइम के लिए जो नेक्स्ट आइटरेशन लगेगी ना लूप की, उसमें नम कितना होना चाहिए? ओके, सो पहली बात जो पुश करोगे आप, वो कौन करोगे आप? num %2, num, that will be my step 1, the modulus operator. The modulus do what? It will divide it num with the 2, and whatever is the remainder that is coming here, that should go in where? That I will push. Maybe I put it into some element, maybe stack element, okay? And now I push this stack element. I push this, right? Now 0 goes here, right, sir? Now step second is the number will not stay as a number, rather number will stay as number is equal to num divided by 2. Because when you divide by 2, it will get the coefficient. When you say modulus operator, it will give the remainder. Now next time 12 is my number. Now I do same operation again, the same step 1 again in a loop. This thing happen in a loop. Okay, till number becomes 0. This loop will run till number is equal to 0. जब तक 0 है तब तक करते जाओ, होने दो, तो वो रिमाइंडर में चला जाएगा ना, नंबर 0 आएगा ना, नंबर तो 0 आएगा, फर्ज कीजिए ये 25 था, तो यहाँ पे 1 आता ना, लास्ट में दिखाऊंगा, पहले 2 6 is 12, remainder is that will go into stack, okay,
And now what will be the next number? How is 3? 2, 3, 6. So what is the next number? 6. So 2 into 3 is 6. Remainder is, that will go here. What is this here? 3. So 2 into 1 is 2. What is remainder? Remainder is 1. That will go into the stack. Remainder will go into stack. Now the number is 1. So 2 into 0 is, because 1 को तो होगा नहीं, तो 0 आएगा ना कोएफिशिएंट. अगर मैं 1 को डिवाइड बाय 2 करूंगा, so कोएफिशिएंट will be 0. It will be like this: 1, 2 से करो, 2 zeros are 0, 1 is the remainder and 0 is the coefficient. So 0 is coefficient and 1 is remainder. This one will go where? Onto the stack. Okay, and this 0 is the number. When the number becomes 0, what will do? You will stop, because we are done. We are now read this. Now pop, क्योंकि जो नंबर हमारा होता है वो यहाँ से होता है ना, ऐसे, ये ऐसे होता है. So MSB will be like this. We read it like this: 1 1 0 0 0. This is my 24 in binary, right? So this is for example 1 2 4 8 and 16. 16 plus 8 is 24. So this is 24 in binary. That is my here. So because अब जो last वाला है वो पहले नहीं निकलेगा, जो last वाला था वो पहले निकलेगा. So when we read it, we will read first 1, then next 1, then 0, then 0, then 0, and this is a number, right? So we do 2 steps. First, we, whatever the number is, we ask the user, these are numbers, give me the number to convert into the binary. I will do 2-step process in a loop. ये loop कहाँ तक चली? While num is greater than 0. जब तक 0 आ गया तो निकल बाहर, हो गया काम, हमारा हो गया. उसमें स्टेप 1 में क्या करूंगा मैं एक स्टैक एलिमेंट इज इक्वल टू num % 2, num %, और जो ये स्टैक एलिमेंट है कहाँ करूंगा? इसको करूंगा पुश onto the stack. इसको पुश करूंगा onto the stack. उसके बाद num is equal to num divided by 2. ओके, num is equal to num divided by, तो लूप फिर से चलेगी क्योंकि num अभी 12 है ना. फिर से 12 को डिवाइड होगा, वो डिवाइड जो रिमाइंडर है वो जाएगा कहाँ पे? स्टैक के अंदर. ठीक है, पास में आ रही है. और num बनेगा 6 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, फिर से उसका मॉड्यूलस ऑपरेटर num % 2. num % 2 में मॉड्यूलस रिमाइंडर जाएगा कहाँ पे? स्टैक में. तो नेक्स्ट एलिमेंट बनेगा 3 and so on so forth. जो ही एलिमेंट 0 बना, it will come out of this while loop. After that we'll do pop operation. We do what? We do pop operation, or we can traverse also. But हमें push pop करना चाहिए ताकि एप्लीकेशन हो जाए. ठीक है, इससे पॉलिश नोटेशन वगैरह वो भी एप्लीकेशंस है इसकी. इसमें ना ये स्टैक वो आती है एग्जाम में, फिर वो करना है. ठीक है, then we have to do that first tomorrow maybe, right? अभी अपन ये प्रोग्राम पर इस कीमत समझा मैं फिर से, ये लॉजिक समझ आ गया. Now you do this. Absolutely. समझ में आ रहा है बच्चा? Okay. Then that's all for today.